Thanks a lot, Ruchi. Very enlightening. In fact, as I've experienced, HR is the most taken for granted kind of a function when you are starting up. So you think you will hire everyone, you know the policies also. I think what she's doing in HR Gurukul is a good thing for all of us to learn about HR. And also in any organization, people assets are the most expensive and are the most transformational element of any organization. So, and these guys are doing a fantastic job. So that was Ruchi Bhatia, and employer branding also is also, a lot of startups don't look into employer branding. For example, you as a CEO or a COO are going to hire people. Why can't you do a little bit of a personal branding on LinkedIn? And as she rightly said, you can post work culture videos on the Facebook as well as on a LinkedIn account, because anyone who's going to be hired, you're going to poach people. When any new ecosystem or a new business system or a new startup is born, a new part of our population not born for that thing. You have to poach people from outside. And poaching, for poaching people, nothing but branding. Now the next speaker, Mr. Kailash Shankar Tiwari, is going to be sharing about, can I have Kailash? I'm here. So, from making people flower to extracting oils from flower, Kailash has had a fantastic journey. And an HR person, a consultant, to a manufacturing person, to running a manufacturing setup which is in the name of his dear daughter. I've got two twin daughters. So, Ria Agro that he runs. So, if you have pain or if you want smell, if you want flavoring oils, he's the guy. And he runs his own manufacturing facility out of Noida, state-of-the-art facility. From manufacturing talent to manufacturing oils. Over to Kailash. Thank you. Very good morning to all of you. आवाज नहीं आ रही. हम तेल निकालते हैं तो पीछे तक की भी आवाज आनी चाहिए. So, hi, I am Kailash. I'm really happy to be back on this podium after 2.5 years. I used to do a lot of trainings before, and I come from an HR background. I have trained a lot of professionals. I have been associated with HCL and Dabur for quite good 17 years. I have headed a lot of projects. Finally, one fine day at my village, I was out for a cigarette break, because obviously you cannot fag out in front of your elders. So that was the time when this idea got birth of, providing pure oils to people. And I'll share that journey with you. It was like, I was sitting across there and the Kolhu chal raha tha. I hope you guys understand Kolhu. तो कोल्हू चल रहा था और मैं वहीं बैठ के सिगरेट पी रहा था. तो मैंने देखा कि सरसों का तेल निकल रहा है. एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई सॉ कि तेल निकलता कैसे. लोगों का तो तेल बहुत निकाला हुआ था मैंने पिछले 20 सालों में, लेकिन ये टाइम था जब मैं सरसों का तेल निकलते हुए देख रहा था. एंड उसी के साथ उसने एक मशीन लगा रखी थी जिसमें वो चावल के धान को भी अलग कर रहा था और साथ में आटे की चक्की भी चल रही थी. तो यू मस्ट हैव, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू बिलोंग टू विलेजेस. गांव से कौन लोग बिलोंग करते हैं यहाँ पे? नहीं, हाथ तो उठ ही नहीं रहे यहाँ पे. हाँ, रूट्स आर फ्रॉम द विलेजेस. एग्जैक्टली. सो वो ट्यूबवेल की एक आवाज आती है, पुक 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 पुक. यू रिमेंबर दैट आवाज? अभी किसी ने सुना नहीं सुना? वो जो इंजन चलता है, जब वो फील्ड मार्शल वाला इंजन चलता है, तो तेल निकल रहा था. एंड आई वाज लाइक कि ये तो बहुत अच्छा आइडिया है. सो आफ्टर कंप्लीटिंग माय डॉक्टरेट, गांव में आंगन होता है बीच में, तो सब शाम को खाना खा रहे थे. So I disclosed my idea to my father and my elders there कि पापा मैं कोल्हू लगाना चाहता हूँ. 2-3 लोगों का तो खाना ही बाहर आ गया कि क्या कर रहा है. मतलब एक HR प्रोफेशनल जो है वो कह रहा है मैं कोल्हू चलाना चाहता हूँ. मैं एक ब्राह्मण परिवार से आदमी तेली बनना चाह रहा है. तो बड़ा ऑब्जेक्शन आया. पागल गया, ये क्या करेगा, कैसे करेगा. मैं नहीं, आई फील इट्स अ नीड ऑफ Delhi and we can actually give something good to Delhi Heights. So finally, after a lot of objections, so when I say obstructions, the very first thing that comes into our mind is our own mindset. और वो 3 क्वेश्चन जो आते हैं सामने, वो होता है कब, कहाँ और कैसे. स्टार्टअप तो सबके दिमाग में होता है. Everybody wants to become an entrepreneur, and
मैं तो बचपन से ही थोड़ा ज़्यादा ही था इन चीज़ों पे, लेकिन अल्टीमेटली आई वॉज वेरी कंफर्टेबल विद माई जॉब, आई वॉज वेरी कंफर्टेबल विद माई प्रोफाइल। कॉर्पोरेट लाइफ बहुत अच्छी लगती थी। 9 to 5 तो कभी नहीं किया, 9 to 9 ही हुआ था इस लेवल पे आने के बाद तो, बट स्टिल लाइफ वॉज गोइंग गुड। देन ऑल ऑफ अ सडन इट हैपेंस, जब आप एक अच्छे कोजी कल्चर से निकल के बाहर, अभी यदि मैं आपको इसी रूम से बाहर निकाल के मेन रोड पे ले जाऊं तो आपको समझ में आया कि अच्छे खासे ठंडे अंदर बैठे हुए थे, कैलाश कहाँ बाहर लेकर आ गया। यहाँ तो खूब गर्मी है, खूब धूप है और लू चल रही है इस समय, एंड ऑब्वियसली 12 बज रहे हैं, तो सन अंकल भी अपनी पीक पे हैं इस समय। तो दीज आर दी ऑब्स्ट्रक्शंस आई विश टू शेयर विद यू गाइस कि ऑब्स्ट्रक्शंस हैं क्या स्टार्टअप्स में। ऑब्स्ट्रक्शन सबसे पहला हम खुद होते हैं। हम खुद क्यों होते हैं? क्योंकि हमें नहीं समझ में आता कि हमें उसे कैसे करना है। सबसे बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन होता है प्लानिंग। पेन एंड पेपर में हम बहुत अच्छे से प्लान कर लेते हैं चीजों को, इतना माल बेचेंगे, इतना प्रॉफिट मार्जिन है, इतना कमा लेंगे, नौकरी को भाड़ में जाए। यस और नो? नहीं नहीं, यहाँ पे काफी लोग इतना पहले दिन से प्रॉफिट कमा रहे हैं यहाँ पे, क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। So the very first thing that comes into our mind is, the pen and paper calculation that we do when we plan a startup, and then all of a sudden वो image जो shatter हो जाती है। जब हम स्टार्टअप शुरू करते हैं तो एज रुचि राइटली सेड, एंजल फंडिंग, मुझे तो पिछले 3 सालों में एंजल दिखी नहीं है कहाँ पे, तो फंडिंग के लिए तो मैं अभी भी ढूंढ ही रहा हूँ किसी को। लेकिन हाँ, दैट्स ट्रू दैट पीपल आर ब्लेस्ड विद एंजल फंडिंग एट टाइम्स, नॉट पीपल लाइक मी एक्चुअली। सो कोई इन्वेस्टर बैठा हो तो प्लीज, आई एम देयर। सो द मेजर ऑब्स्ट्रक्शन कम्स इज फंडिंग। तो जब हम बात करते हैं कब, कहां और कैसे, तो पहली चीज तो होती है कि करना क्या है, और यदि करना है तो कैसे करना है, और जब कैसे करना है तो कहां करना है। यही 3 क्वेश्चन यदि आप आंसर कर लोगे, आपका स्टार्टअप सक्सेस है। लेकिन इन्हीं 3 क्वेश्चन के आंसर करते करते आप इतना घूम रहे होते हैं उसी के अंदर कि बहुत सारी प्रैक्टिसेस पीछे छूट जाती हैं। आई शेयर अ ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ रिया एग्रो इटसेल्फ। वी स्टार्टेड विद अ ब्रांड कॉल्ड फ्रेश एंड प्योर, क्योंकि तेल जो था वो फ्रेश निकल रहा था और बिल्कुल प्योर था, तो मैंने वही नाम दे दिया, फ्रेश एंड प्योर। लेकिन मैं एक चीज भूल गया था कि देयर इज समथिंग कॉल्ड टेकिंग अ ट्रेडमार्क और पेटेंटिंग योर वर्क। कोई 1 साल बाद मेरा एक दोस्त मुझे फोन करके कहता है, कैलाश आई एम रियली प्राउड ऑफ यू यार, आई एम रियली हैप्पी टू सी योर प्रोडक्ट्स इन बिग बाजार। मैं कहा बिग बाजार? मैंने तो एक भी प्रोडक्ट नहीं भेजा बिग बाजार में। बिग बाजार में मेरा प्रोडक्ट कहां से आ गया? आई होप यू गाइस रिमेंबर, अब फ्रेश एंड प्योर सिंबल देखा है आपने, राइट टिक वाला सिंबल। राइट टिक मेरा नहीं था, फ्रेश एंड प्योर मेरा था। सो दैट डे आई गेट अ कॉल कि कैलाश आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। सो आई डोंट बी प्राउड ऑफ मी, जस्ट सेंड मी द पिक्चर फर्स्ट कि है क्या वो। तो उसने देखा कि वो सारी बॉटल्स भरी हुई हैं सरसों के तेल की और घी, फ्रेश एंड प्योर, फ्रेश एंड प्योर, फ्रेश एंड प्योर। मैं कहा ये मैं नहीं हूं, इट्स नॉट मी। That was the day when I understood the importance of patenting your work or patenting your idea. So my dear friends, कुछ भी दिमाग में हो तो आज की डेट में पहले जरा पेटेंट ले लेना उसका, या ट्रेडमार्क ले लेना उसका, वरना होगा ये कि साल भर बाद की मेहनत के बाद आपको समझ में आएगा कि अरे ये तो कोई और ले गया। आइडिया आपका था, ले कोई और गया, या काम आप कर रहे हैं बट somebody has taken it out of your reach. So this happened with me. So obstruction one, that you prepare, you plan, and all of a sudden you get a backstab की आपका ब्रांड तो कोई और यूज कर रहा है, बट ठीक है, उसने ट्रेडमार्क लिया इसलिए he deserves it. That was the day when I took the trademark called Step to Pure, and that was the day when I understood कि नहीं ट्रेडमार्क क्यों जरूरी है, हमें क्यों चाहिए ट्रेडमार्क। Then comes the registration process. आप यदि कोई काम कर रहे हैं, obstructions, registrations में there are a lot of obstructions. पहला ऑब्स्ट्रक्शन किस लिए करना है, कौन सा लाइसेंस चाहिए, नो हाउ अबाउट द लाइसेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज नाउअडेज स्टैंडर्ड्स आर गेटिंग वेरी वेरी रिजिड एंड वेरी स्ट्रॉन्ग। आई मीन इवन फॉर अ वेरी स्मॉल वर्क दैट यू मे प्लान कि कोई नहीं पूछने आएगा, यू माइट गेट क्वेश्चन नाउ। थिंग्स आर गेटिंग इन अ डिफरेंट शेप नाउ, सो बेटर register yourself for whatever you are planning to do, be it a small registration, be it a big time registration, be it a MSME, be it a khadi, anything that you guys wish to,
please make sure that you register. Talking about funding, startups मेरे हिसाब से कुछ येड़े लोग होते हैं. Honestly, I'm so sorry to use this word, but ये वो येड़े लोग होते हैं जो किसी बॉस के अंडर काम नहीं करना चाहते, या वो तलवार की उस नोक पे पहुंच जाते हैं जहां पे तलवार चुभने लगती है. 10, 20, 25 हज़ार की जब तक आप सैलरी उठा रहे होते हैं तब तक बॉस को आप बुरे नहीं लगते, लेकिन जब आप लाख 1.5 लाख की सैलरी में पहुंच जाते हैं तो आप बॉस को आप चुभने लगते हैं. और आप यदि 1 मिनट को भी खाली इधर उधर बैठे दिख गए तो डेफिनेटली कोई ना कोई सास वाला ताना आपको जरूर पड़ता है कहीं ना कहीं से, चाहे डायरेक्टली पड़े चाहे इनडायरेक्टली पड़े. एक सासू माँ आपकी इनडायरेक्टली वर्चुअल सासू माँ ऑफिस में भी दिखाई देनी शुरू हो जाती है आपको. एंड दैट इज द टाइम व्हेन आई पर्सनली बिलीव कि एक स्टार्टअप शुरू होता है. तो स्टार्टअप मेरे हिसाब से एक वो व्हाइट बोर्ड है जो पूरा भर चुका होता है आपके एक्सपीरियंस के साथ, चाहे वो 10 साल का हो, चाहे 5 साल का हो, चाहे एक न्यू आइडिया लेकर एक नया बंदा मार्केट में आ रहा हो. बट वो अपने सारे आइडियाज को पहले साफ करता है, फिर एक नया व्हाइट बोर्ड बनाता है और उसके ऊपर लिखता है स्टार्टअप. व्हाई? बिकॉज ही इज अगेन स्टार्टिंग अप. जितना आपने पीछे सीखा, जितना आपने सब कुछ किया, you may take it on, but the board would remain white. Obstructions, first, as I told, funding and funding. कितने पैसे होते हैं हम और आपके पास जो हम जॉब से छोड़ के यहाँ आते हैं? आप बताओ मैम, क्या फंडिंग लेके आप जॉब छोड़ रहे थे? रुचि मैम बताइए. ईमानदारी से बताओ, या इनकम टैक्स पर नहीं बैठे, ईमानदारी से बताओ. नहीं, फिर भी होता क्या है अपने पास? 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए ये अपने बैंक में होते हैं. यस और नो? सब सो रहे हैं, सब सो रहे हैं. बैक बेंचर्स, कितने पैसे लगे हम कोई काम शुरू करते हैं? 10-15 लाख. कौन है ये रईस आदमी? ओह, आई लव यू फॉर दैट या ब्रदर. मेरे पास कुल 2 लाख रुपए थे. डायरेक्टर से लड़ाई हुई, डायरेक्टर ने कुछ उल्टा सीधा बोला. उस दिन हाजमा मेरा खराब था, मैंने वापस दे दिया. अगले दिन से ऑफिस नहीं गया. बैंक में कुल 2,13,000 यानी 14,000 रुपए पड़े हुए थे. फाइनली ये हुआ कि एक मशीन डाली जाए और रिया एग्रो को शुरू किया जाए. फर्स्ट मंथ, rather let me be very honest with you, the very first year the turnover was just 1.96 lakhs with an initial investment of 2 lakh rupees. पूरे 1 साल घिसने के बाद जो रिया एग्रो ने टर्नओवर किया था वो मात्र 1,96,000 रुपए की. ईमानदारी वाली जो सेल टैक्स की रिटर्न होती है वो बता रहा हूँ आपको, कैश वाली नहीं बता रहा है. यहाँ पे थोड़ी मोड़ी इधर उधर हो गई होगी, कोई बात नहीं, बट जो सेल टैक्स वाली है वो बता रहा हूँ आपको. सेल टैक्स में ईमानदारी से 1,96,000 रुपए की एनुअल रिटर्न भरी गई. कई बार इस बीच ख्याल आया कि अच्छा होता क्या है, क्योंकि आप 20 साल से कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में जुड़े होते हैं तो बीच बीच में ना वो जॉब ऑफर्स फॉर यू मेल पे आते रहते हैं. ये बड़े किलिंग होते हैं, आई टेल यू. ये बड़े किलिंग होते हैं और ये बड़े ही अट्रैक्टिव भी होते हैं. अब पता चला कि जेब में तो 10,000 रुपए भी नहीं है, ऑफर आ गया 1,75 का. यस और नो? 1,75 का ऑफर आया. 2 बार सोचा यार इस बार बेटे की फीस भी बीवी ने भरी, मैं तो भर नहीं पाया, ऑफर पकड़ ही लेता हूं. स्टार्टअप तो चलता रहेगा, बाद में कर लूंगा. दिस इज द मेजर ऑब्स्ट्रक्शन, बिलीव मी और नॉट. मैं फिर बार बार बोल रहा हूं, हम खुद ही सबसे बड़े ऑब्स्ट्रक्शन होते हैं एक स्टार्टअप के लिए. क्यों? क्योंकि हमारा अपना वेवलेंथ, हमारा जो है वो बार बार घूम के हमें हिट कर रहा होता है, हिट कर रहा होता है. अच्छा एक चीज और बताऊं आपको, आपके जो सो कॉल्ड दोस्त होते हैं ना, वो कुछ साल के लिए गायब से हो जाते हैं. नहीं, उन्हें पता है कैलाश पैसे मांग लेगा, उसके पास तो है नहीं. अब उसने बिजनेस चलाना है तो गलती से किसी को हाय व्हाट्सएप पे लिख भी दो तो हो रेड के नीले टिक्के तो बन जाते हैं, लेकिन उससे नीचे का हाय नहीं आता वापस. तो ये वो टाइम होता है जब ये भी एक ऑब्स्ट्रक्शन है, जब आपको लगता है अरे यार ये तो कल तक कहता था भाई तेरे लिए तो जान हाजिर है, आज वो व्हाट्सएप भी नहीं कर रहा, जवाब दे रहा. तो ये भी एक ऑब्स्ट्रक्शन है. फिर आप याद करते हैं अपने फैमिली मेंबर्स को. आई एम ब्लेस्ड विद अ वर्किंग वाइफ. मैं उसे कामधेनु कहता हूं क्योंकि पिछले 2.5 साल से घर वही चला रही है. अब जाके मैंने थोड़ा थोड़ा टेक ऑन करना शुरू किया है. बट द फैक्ट इज यस, आई एम थैंकफुल टू माई वाइफ who has actually helped me out to run this show.
So just to complete that part, with the 2 lakh rupees funding and an annual turnover of 1.96 lakhs, the decision was that, हाँ, 18th of September, we took a decision कि अब शायद हम RIA Agro को आगे नहीं बढ़ाएंगे, because I got a wonderful opportunity with NTPC, Raebareli plant as HR head, and they were offering me good package. मैं कहा यार छोड़ो ना, कहाँ दिमाग लगा रहे, तेल वेल निकालने में चलते हैं अपन, अपने बढ़िया नौकरी करते हैं, कॉर्पोरेट कल्चर में जिंदा वापस कहाँ चल रहे हैं. आई डोंट नो व्हाट वेंट रॉन्ग, ज्वाइनिंग थोड़ा लेट हो गई, और उसी बीच हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली, एक एक्सपोर्टर मिले जिन्होंने हमें थोड़ा सा काम दिया, बढ़ाया उस चीज को. मार्च 2017, जैसा मैंने बताया, 31st मार्च RIA Agro was at 1.96 lakhs का टर्नओवर. मार्च 31st March 18, RIA Agro crossed 2.5 CR का टर्नओवर. And all thanks to people like you who actually came up and supported me कि कैलाश तुकर हम सब तेरे साथ हैं. Not financially, honestly, but they were like कि orders आने लगे, काम होने लगा, चलने लगा, and with one machine that we started, we are currently running up with 11 machines, and we are planning to acquire around 10 more machines very soon. So from a production capacity of just 200 kg a day, RIA Agro now produces 300 tons per month. That's what RIA Agro is all about today. Obstructions की बात करूंगा फिर से एक बार, फंडिंग आज भी नहीं है, ऑनेस्टली. अभी भी कई बार चेक क्लियर कराने के लिए ना इधर उधर देखना पड़ता है, लेकिन अब कुछ दोस्त आगे आने लगे हैं, क्योंकि शायद उन्हें दिखने लगा है कि अब RIA Agro काम कर रहा है. एंड दिस हैपेंस. हाँ, तो ऑब्स्ट्रक्शन में मैं बता रहा था, फैमिली मेंबर्स का भी बड़ा रोल होता है. 10-20 हज़ार, 50 हज़ार, 1 लाख, 2 लाख आप अपने भाइयों से ले सकते हो, दे हैप्पीली गिव यू. एक बार, 2 बार, तीसरी बार थोड़ा सा मुंह सूझने लगता है, क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, बिकॉज एवरीबडी एक्सपेक्ट्स अ क्विक रिटर्न ऑफ देयर मनी. यदि मैं एक स्टार्टअप शुरू करता हूं तो मुझे लगता है कि शायद बस आज शुरू करूंगा, कल मैं मिलियनेयर हो जाऊंगा. ऐसा नहीं. When you do something, there is a model which I personally say a model of 1000 days, जिसके अंदर दम है 1000 दिन सरवाइव करने का, वही अपने बिजनेस को आगे लेके जा सकता है. तीसरा साल मेरा चल रहा है, अगस्त 2018 में मैं पूरा करने वाला हूं. उसके बाद शायद आप लोग प्राउडली कहोगे हाँ कैलाश यार सही कर रहा है. So I am still not completing those, I am yet to complete those 1000 days, but believe me, the first 100 days are all about goof-ups that you do in your planning. इतना बढ़िया लगता है पेन एंड पेपर और एक्सेल शीट पे प्लानिंग करना, इतने टन प्रोडक्शन, इतने टन का मार्जिन, इतना ये, अब तो राजा ही राजा है. जब मार्केट में माल बेचने निकलते तो पता चलता है हमारे से तो 50 बैठे हुए हैं और हमसे सस्ता बेच रहे हैं. आप क्वालिटी को लेके कहां जाओगे? आजकल प्राइस कॉन्शियस भी लोग हो चुके हैं. सरसों का तेल 90 रुपए में बिक रहा है. किसी को क्या पता कि 44 रुपए किलो सरसों आती है. उन्हें तो 90 रुपए का चाहिए, क्योंकि रामदेव ने कह दिया है सस्ता खाओ, अच्छा खाओ. ठीक है, बट द फैक्ट इज कि when you plan and when you execute, there's a huge difference. And that parabola of planning and execution kills lots and lot of startups. Believe me, I have seen at least 90% of people giving up, not knowing exactly where did they reach. आप देखोगे बहुत अच्छे अच्छे प्रतिभाशाली लोग हमारे देश में बेचारे आगे बढ़ ही नहीं पाए, जस्ट बिकॉज कि उन्होंने 3 महीने 4 महीने तो खींचतान के, 5 महीने खींचतान के तो चला लिया, लेकिन उनके पास फंडिंग ही नहीं थी. यू अप्रोच अ बैंक, बिलीव मी, उनके पेपर वर्क देख के आप पजल में जाओगे. उतने तो पेपर वर्क आपने उतने 6 महीने में नहीं करोगे जितने वो आपको 1 दिन में करवा देगा. ये भी ले आओ, वो भी ले आओ, फलाना भी ले आओ, मामा भी ले आओ, भांजा भी ले आओ, सबको ले आओ, तब जाके कहीं पे मैं लोन दूंगा या सोचूंगा देने की. सो ऑब्स्ट्रक्शन नंबर 1 फंडिंग, ऑब्स्ट्रक्शन नंबर 2 फंडिंग, ऑब्स्ट्रक्शन नंबर 3 फंडिंग. बिना फंडिंग के बिजनेस आगे बढ़ता ही नहीं है. अब फंडिंग आप कहां से लाओगे? आपके पास जो था थोड़ा इधर से मांग लिया, उधर से मांग लिया, चीजों को इकट्ठी कर ली और उसके बाद अपन ने काम तो शुरू कर दिया.
यू वॉन्ट बिलीव, मैं पर्सनली बता रहा हूं कि एक किस्त को भरने के लिए मैंने दूसरा लोन लिया है. यस, इट्स अ फैक्ट कि जस्ट बिकॉज कि एक लोन की किस्तें चल रही हैं बिजनेस लोन की, तो उसको पूरा करने के लिए भी एक कहीं से लोन मिल जाए तो एटलीस्ट उस महीने की किस्त वो पार हो जाए, निकल जाए. एंड दैट्स हाउ द जर्नी गोज ऑन. सो वी एज एन इंडिविजुअल, वी एज अ स्टार्टअप हैव टू इंश्योर कि डरना नहीं है, और कब, कहां, कैसे, ये 3 चीजें हमेशा याद रखनी है. घर से ऑफिस, ऑफिस को घर कभी मत लेके आना, घर को ऑफिस कभी मत लेके जाना. ऑफिस में क्या करना है वो वहीं देखना, सोचना मत. पता चला कि घर की प्रॉब्लम्स ऑफिस लेके चले गए और वहां पे 2 कस्टमर्स भी खराब कर लिए. से बेटर है आप क्या कर रहे हैं, अपने फोकस को मत छोड़िए, अपने काम को अच्छे से करिए, और उसको सिर्फ और सिर्फ ये देखिए कि आपके ऑब्स्ट्रक्शंस कब, कहां और कैसे पूरे किए जा सकते हैं. Remember the formula 1000 days. I think this is something which has to be implemented when it is all about business. It is all about your own business, your own baby that you are trying to, grow up. बहुत आसान है प्लान करना, बहुत आसान है लोगों को समझाना. दिस इज प्रेजेंटेशन बना के, दिस इज व्हाट वी आर प्लानिंग, दिस इज व्हाट विल डू, दिस इज व्हाट विल अचीव, एनुअल टर्नओवर, ये वो. जब पानी में उतरोगे तब समझ में आएगा गहरा कितना है, ठंडा कितना है. और उसके बाद कई बार ऐसा होता है, कई लोग उछल के बाहर निकल जाते हैं. और कई स्टार्टअप्स यहाँ पे मैंने बंद होते भी देखे, जो पानी में उतरे, उन्होंने थोड़ा ठंडा पानी देखा, थोड़ा तैरने की कोशिश करी, नहीं कर पाए और बाहर हो गए. यदि कोई चीज प्लान करी है तो उसके रास्ते भी आपको खुद ढूंढने हैं, कोई और आपको नहीं ढूंढेगा. देयर आर कंसल्टेंट्स, देयर आर पीपल हु हेल्प यू इन टर्म्स ऑफ planning things in a way, but believe me, you are the best judge and you are the one who would ensure कि काम को कैसे आगे लेके जाना है. That's all. Thank you so very much. Thanks for watching. Please subscribe to India's first corporate news channel. We invite interviews, articles, press releases from your organization. Visit our portal www.indianconventions.com. Thank you.